name is Dr. Khurram Parvez. Currently, I am Vice Principal of Dr. Ishfaq Khan Institute of Political Sciences. I saw multiple faces of my previous student and my current student as well, along with my colleagues. I start my presentation and I discuss something which is related to some ground realities. My topic of presentation today is spectrophotometric analysis of nanocomposite. Hello. Okay. Before starting my presentation, I'll discuss something related to nanotechnology. In current era of anything related to dentistry, everything is nano-based. Such as, what is nanotechnology? Anyone have any idea? I think everyone knows that nanotechnology is the current era of every education, technology, engineering. Is basically the science and technology related to engineering of a matter up to 1 to 100 nanometers. And it will create multiple things, such as, and the father of nanotechnology was Sir Richard Feynman, who in his presentation in 1959 described a very popular statement and said that there is a plenty of space at the bottom. He was the physicist who created this term, and now we all follow his path. Currently, nanotechnology in dentistry, especially in dental composite, relate to what is composite. Composite are the ideal aesthetic material in restorative dentistry for aesthetics. There is no doubt about that. But still, there are a lot of concerns related to composite as well. So, nanotechnology based on these things. These include the top-down approach or even the bottom-up approach. What is top-down approach? In top-down approach, whatever we create for nano, we need to first break into the parts, then it will create a nanoparticles. And the bottom-up approach includes we combine multiple units to create a nanoparticle. These are two approaches that is used in dentistry as well as in engineering as well. And nanocomposite based and majority developed from top-down approach in dentistry. So the evolution of composite begins from 1950s and 60s, and currently up to 2025 nanotechnology begins. And they are from micro to macro to micro, then nano, current nano hybrids and nanoparticles containing composite are there. But still aesthetically composite are the best one. लेकिन आपको क्या लगता है कि इतना अच्छा और इतना बेस्ट मटेरियल जितने अर्से पहले आया था उसमें कोई इश्यूज नहीं होंगे? Definitely there are a lot of concerns still with nano composite as well, such as discoloration is one of the major concern. कैसा लगेगा कि अगर एस्थेटिक अच्छी नहीं है, आपकी डिस्कलरेशन है, तो आपका फेस कॉन्फिडेंस कैसा है? आप बात पब्लिक में कैसे कर सकते हो? आप रिलेटिव से कैसे बात कर सकते हो? आप इसके साथ साथ पेशेंट डीलिंग कैसे कर सकते हो? तो एस्थेटिक इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न. तो व्हाट वी डू अबाउट दैट? These are the major concerns currently with nanocomposites. That includes nano and discoloration. I gone through a reading and found this quote related to aesthetics, that there is no one is too poor to give a smile, a gift often a greater consequence than any sum of money. In this little clip, what Dr. Ronaldo Hirata said, that smile says more than 1,000 words. And now in the upcoming picture, everyone knows this man. The father of the nation, the Qaeda Muhammad Ali Jinnah. Even majority of you look after his picture on the currency as well as in the daily life. But smiling picture was very rare. What we do with that? कि भाई करें क्या? इतने इश्यूज हैं, कंपोजिट से फिलिंग भी करनी है, क्लिनिक पे रोज पेशेंट भी आ रहा है, एस्थेटिक भी ख्याल रखना है, लेकिन डिस्कलरेशन क्या हमें करना चाहिए? तो मैं और मेरी टीम ने मिलकर कुछ एक आइडिया निकाला कि कुछ करते हैं.
हमने डिफरेंट आइडियाज डिसाइड करने के बाद जो मेन निकाला कि कलर असेसमेंट कैसे करें यार। कंपोजिट तो बहुत सारे मार्केट में, हर कंपनी कहती है मेरा बेस्ट मटेरियल है, उसको असेस हम लोग इंडिविजुअली क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्लिनिक्स पे होता क्या है कि आप पेशेंट कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, टाइम आपके पास कम है, लिमिटेड है, तो आप ऐसा कोई चीज़ निकालो जो ग्राउंड रियलिटी बेस्ड रिसर्च हो और आप एक इंडिविजुअल रिसर्च कंडक्ट कर सको जिसका आपको फायदा ना सिर्फ एकेडमिकली हो और प्रोफेशनल में भी उसका फायदा हो। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कभी आप किसी हायर एजुकेशन में जाते हो, पीएमडीसी में जाते हो, तो प्रमोशन के लिए, हायरिंग के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? पहला सवाल, हमारे सबके सर और दिल अजीज सब बैठे प्रोफेसर नवीद, पहला सवाल हर सिलेक्शन इंटरव्यू बोर्ड का एक ही होता है, हाउ मैनी पब्लिकेशंस यू है और कितने इंडेक्स जर्नल्स में हैं। तो इसके लिए आपका रिसर्च प्लस क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों चीज़ें साथ साथ साइमल्टेनियसली चलना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इसके ये कंसर्न ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी रिसर्च कंडक्ट की थी जो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगा कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होती है। एक ये बेसिकली एक साइंस है जो लाइट को ट्रैक करता है कि आपकी कलर असेसमेंट ऑफ एनी मटेरियल बताता है। ये हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेके किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हर जगह पे यूज़ होता है कि कोई भी चीज़ कलर असेस कैसे कर सकते हो। कोई भी कॉटन बोर्ड है, जो लोग मार्केटिंग में है या जो लोग डिफरेंट कंपनी से बिलोंग करते हैं, उसमें ये चीज़ दिखाया जाता है भाई इसके कलर कैसा है। तो ये बेसिकली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जो कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे काम करता है। कैसे करता है तो इस रिसर्च से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, टू इवैल्यूएट कलर स्टेबिलिटी ऑफ 2 नैनो कंपोजिट रेजिन्स व्हेन एक्सपोज्ड टू कॉफी सॉल्यूशन। क्योंकि इस वक्त मेजॉरिटी सर्दियों का सीज़न आ रहा है, अभी तो स्टार्ट होने वाला है, तो ज़्यादातर लोग गले की परेशानी में रहते हैं, तो चाय और कॉफ़ी के बगैर ज़रा मुश्किल है। तो जब अगर आपका डेली कंजम्पशन कॉफ़ी में ज़्यादा है तो ऐसी रिसर्च की जाए तो ग्राउंड रियलिटी बेस्ड भी हो, एस्थेटिक जोन में आपकी फीलिंग हुई हुई है और आप कॉफ़ी ड्रिंक एक आसान टेक्नोलॉजी जो हमने यूज़ की, जो मैं भी आप लोगों से शेयर करूँगा। हमने ये 6 मंथ्स की स्टडी कंडक्ट की इन 2 नैनो कंपोजिट में। डिफरेंट, एक फिल्टेक था, एक स्पेक्ट्रम था। हमने इनिशियली जो है उसको एक मोल्ड के थ्रू इसके डिफरेंट डिस्क बनाई, टोटल 120 डिस्क हमने बनाई, जिसमें 10 मिलीमीटर का डाया रखा और 2 मिलीमीटर की थिकनेस रखी। इस तरह की कंपोजिट डिस्क आप इजीली कहीं भी बना सकते हो। हाँ, लाइन ऑब्वियसली वैलिडेटेड लैब होनी चाहिए। और इसके साथ इस तरह हमको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 सिंपल सैंपल्स में। एक सैंपल हमने रखा कॉफ़ी के अंदर, एक सैंपल हमने रखा डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, और फिर आपस में कंपेयर करके देखा कि भाई आफ्टर अबाउट 1 वीक कॉफ़ी की वजह से कितना डिफरेंस आया उसके कलर असेसमेंट के ऊपर दोनों मटेरियल्स के अंदर। तो इस तरह हमने सेपरेट एक डिस्क बना के उसको सेपरेटली कंटेनर में सेव किया, उसको इंक्यूबेटर में इनिशियली 24 आवर्स के लिए सेव किया। 24 आवर्स के लिए कोई भी रिसर्च के अंदर आप पॉलीमर बेस्ड मटेरियल उसको आपको छोड़ना पड़ता है। रीज़न जो बहुत सारे लोग टेक्निकली या पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्वॉल्व है उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कोई भी पॉलीमर बेस्ड मटेरियल है, स्पेशली डेंटल कंपोजिट, तो वी नीड टू स्टोर कंप्लीट द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इस वजह से 24 आवर्स पे कोई काम नहीं किया जाता। आफ्टर 24 आवर्स हमेशा स्टडीज कंडक्ट की जाती है। हमने इनिशियली 24 आवर्स के बाद एक रिसर्च उसका बेस लाइन डाटा लिया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से और उसको कंपेयर किया आफ्टर स्टोरेज ऑफ 1 वीक इन द कॉफी सोल्यूशन। We use this spectrophotometer in one of the textile industries in Karachi, and they are very cooperative. They allow everyone to do research if you got the right. After the storage of 1 week in coffee solution, we then assess on the spectrophotometer again, and the baseline and the post-operative readings were compared, and the reading was found to be very interesting. Because we found nanocomposite of Filtech were more stain containing than the spectrum. This was the study already published. You can go on the website. Another thing you need to learn any study related to color assessment. There is a requirement of delta E less than or equal to 3.3. That means it is clinically acceptable. Otherwise, if the reading is higher than 3.3, then it is unacceptable. These were the results of the study. Before I conclude my presentation, I just want to thank Mr. Salman and his management to allow me to give some एक चीज़ याद रखिएगा, डेंटिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर कंप्लीट कॉन्सेप्ट है तो आप हाथ डालिए और मजीद कंटिन्यू कीजिए। अगर पार्शियल कॉन्सेप्ट है तो क्या होगा वो अब आप इस क्लिप में देखेंगे।
you very much.